عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا آج کا یہ جلسہ، یہ پروگرام بس اب شروع ہوا چاہتا ہے، لہذا میں معزز مہمانان کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر آ کر تشریف فرما ہو تاکہ باقاعدہ ہمارا پروگرام کا آغاز ہو۔ سب سے پہلے میں ناندگاؤں کے مسلم نگر سیوک محترم شیخ یعقوب بھائی سے گزارش کروں گا اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ساتھ ہی مالیگاؤں سے تشریف لائے مہمانان کرام، ایرم پرائمری اسکول کے چیئرمین مختار قریشی سر، مالیگاؤں میونسپل کارپوریشن کے سمو پرمکھ اشفاق قیصر سر، ہمارے ناندگاؤں کے عقیل بھائی ٹیلر صاحب، مالیگاؤں سے تشریف لائے شعبہ اردو لسانی کمیٹی بال بھارتی پونا کے مشاورتی کمیٹی کے ارکان محترم ظفر عابد سر، مشاہد حسین رضوی صاحب اور یاسین اعظمی سر، ان تینوں حضرات سے بھی گزارش کروں گا اسٹیج پہ تشریف لائے۔ ساتھ ہی ہمارے اسکول کے معلمہ فوزیہ میڈم کے والد صاحب حاجی شیخ بابو لال سے گزارش کروں گا حاجی یوسف صاحب سے تشریف لائیں اسٹیج پر۔ ذاکرہ میڈم کے والد صاحب انجم سر سے گزارش کروں گا برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں۔ اسی کے ساتھ مدرسہ فلاح المسلمین کے صدر جناب مفتی فہیم صاحب سے گزارش ہے اسٹیج پر تشریف لائیں، اور ہمارے اسکول کے سابق معلم جناب یعقوب جناب سے گزارش ہے کہ کچھ دیر کے لیے تشریف لائیں، آئیے۔ اور HR ہائی اسکول ناندگاؤں کے پرنسپل محترم سعید سر سے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ انجل سر آئیے، آئیے آئیے آئیے۔ تو نظامت کے لیے میں ہماری اسکول کی 2 طالبات جماعت ہفتم کے طالبہ خان عربیہ ارشاد اور مومن جویریہ فیروز سے گزارش کرتا ہوں وہ لوگ آ کر اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ قابل احترام مہمانان، اساتذہ اکرام اور آئے ہوئے سبھی والدین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز محفل لوح و قلم اللہ جل شانہ کے اس مقدس ترین نام سے جو لفظوں کا خالق ہے، حرفوں کا مالک ہے، تحریروں کا پروردگار ہے، ستون آسمانوں کا معمار ہے، خاک پررنگ نور اور خوشبو کا تابندہ اظہار ہے، چاند سورج ستاروں میں اس کی ضیا، اس نے ہی سیپیوں میں گوہر ٹانگ کر بحر کو ناز کرنے کا موقع دیا، جگمگاتی ہوئی فصل میں سوز و نم کا تصور وہی، زمین کا چاند بھی وہ، مشک کا گلاب بھی وہ خدا، وہ بزرگ و برتر خدا جس نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے مثال کلام نازل فرمایا۔ آئیے اسی افضل ترین کلام سے محفل کا آغاز کرتے ہیں تاکہ یہ تقریب بابرکت اور بارونق بن جائے۔ لہٰذا اب بلا کسی تاخیر جماعت پنجم کی طالبہ ماریہ ساجد تمولی کو دعوت تلاوت دیتی ہوں کہ وہ آئے اور قرآنی آیات کے نور سے محفل میں اجالوں کا شامیانہ تان دے کہ سناؤ قرأت اصحاب دہر کو، سناؤ قرأت اصحاب دہر کو، ظلمت شب سے نکالو سحر کو، کہ تمہیں معلوم نہیں کہ قرأت نے بدل ڈالا تھا تقدیر عمر کو،
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. پروردگار عالم رحمان الرحیم کے بے مثال و لازوال کلام پاک کی تلاوت سے باضابطہ اس تقریب کا آغاز ہو گیا ہے. اسی باادب اور پرجلال سکوت و خاموشی کے سائے میں اس ذات باعظمت کی شان رفعت میں ہم نے پاک کے گلہائے عقیدت و محبت نچھاور کرے کہ جس کی تکبیریں، جس کی تحلیلیں اور جس کی تمجیدیں گلاب کی خوشبو میں بھی رچی ہے تو لالا کی مہک میں بھی، جوہی کی چٹک میں ہے، شمس و قمر کی چمک میں ہے تو کہکشاؤں کی دمک میں بھی، جس کی ذات پاک میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے سے پہلے دریچہ ذہن سے یہ مصرے ابھرتے ہیں کہ ہر سانس تیری محتاج کرم، ہر دھڑکن تیری دست نگر، ہر سانس تیری محتاج کرم، ہر دھڑکن تیری دست نگر، ہر نور تیرا ہی عکس جمیل، ہر ظلمت شب ہے تیرا ہنر. تو لفظ احد کی گہرائی، تو لفظ سمت کی گہرائی، تو آخر شب کی رانائی، تو جنبش لب کی شہنائی، تو وسعت بحر و ارض و سما، تو شوکت انجم و مہر و ماں، تو رقص لہو، تو ذوق نظر، تو رونق دل، تو تاب نگاہ. تو آئیے اپنی مدھر آوازوں سے کانوں میں رس گھولنے کے لیے جماعت پڑھنے کے امارہ اینڈ گروپ آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں. ادراک سے پرے ہے یا رب مقام تیرا، ہر سمت ذوقشا ہے روشن نظام تیرا. ادراک سے پرے ہے یا رب مقام تیرا، ہر سمت ذوقشا روشن نظام تیرا. چڑیا چہک چہک کر گاتی ہے حمد تیری، چڑیا چہک چہک کر گاتی ہے حمد تیری. چشمے سنا رہے ہیں دلکش پیام تیرا، چشمے سنا رہے ہیں دلکش پیام تیرا. ہر سمت ذوقشا ہے روشن نظام تیرا. ہر پھول کی مہک میں تیرے کرم کی خوشبو، ہر پھول کی مہک میں تیرے کرم کی خوشبو. بادے صبا کے لب پر پیارا ہے نام تیرا، بادے صبا کے لب پر پیارا ہے نام تیرا. ہر سمت ذوقشا ہے روشن نظام تیرا. خورشید جلوہ نما تیرے، خورشید انجم جلوہ نما تیرے. رات فضا
जहां में अक़सा है इंतजाम तेरा, हुस्ने जहां में अक़सा है इंतजाम तेरा, हर सिमत ज़ोफ़िशा है रोशन निज़ाम तेरा। अपनी रज़ा से या रब तू फैज़याब कर दे, अपनी रज़ा से या रब तू फैज़याब कर दे। सादिक है या इलाही अदना गुलाम तेरा, सादिक है या इलाही अदना गुलाम तेरा। इदराक से परे है या रब मकाम तेरा, हर सिमत ज़ोफ़िशा है रोशन निज़ाम तेरा, हर सिमत ज़ोफ़िशा है रोशन निज़ाम तेरा। सामईन बातम की हम जबारी ताला के इस पुरकैफ व पुरनूर माहौल से आगे बढ़ते हुए अपने साफ और शफ़ाफ आईने दिल में एक ऐसी मुकर्रम व मुअज़्ज़म हस्ती का जिक्र करें, उस रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हमारे मुनीसो गमख्वार है। तज़किरा करें उस खैरुल वरा खैरुल बशर शफीउल उमम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो वजह तख्लीक कायनात है, जिनके सदके से निज़ाम जहां की रंगीनियां बरकरार है, जो सुबह और शाम की दिलकशियों का दारो मदार है। तो आइए नग़्मे नाज़ से महफ़िल को पुरनूर बनाने आ रही है जमात पंजुम की तालिबा आयशा इम्तियाज मोमिन। दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, दुनिया ने बहुत ढूंढा मोहम्मद का जवाब, सानी तो बड़ी चीज है साया न मिला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। गम के अंधेरों ने घेरा हुआ है, आका दुश्वार अब जीना मेरा हुआ है। बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाली, बिगड़ी बना दो मेरी तैबा की वाली। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो उम्मती हूँ ऐशा है उमम, कर दे मेरे आका नज़रे करम। जिसको बुलाया गया वही अर्श बरी है, आपके सिवा ऐसा कोई नहीं है। जिसकी न बात कोई रब ने बिठाई, जिसकी न बात कोई रब ने बिठाई। नबियों के नबी तेरी शान है निराली, मैं तो मोहतरम सामीन, हमारे आज के इस प्रोग्राम का एक हिस्सा खत्म हुआ। अब बैतबाजी का मुकाबला आप लोगों के सामने होगा। मैं आज के प्रोग्राम की दरमियानी ये आखिरी बैतबाजी के प्रोग्राम की निजामत के लिए मालेगांव से तशरीफ लाए मोहतरम मोहम्मद यासीन आदमी सर से दरख्वास्त करूंगा
تو وہ آئیں اور آگے کے پروگرام کو وہ سنبھالیں۔ اور آج کے بیچ بازی کے مقابلے کے لیے جماعت ہفتم کی 2 ٹیمیں ہیں 5 طالبہ کی، وہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے اسٹیج پر آئیں گے۔ اور اس بیٹ بازی کے مقابلے کے لیے 3 اہل میزان 3 ججز کا انتخاب کیا گیا ہے، جس میں جج نمبر 1 پونا بال بھارتی کے شعبہ اردو کے مشورتی مجلس کے رکن محترم جناب ظفر عابد صاحب، اور اسی مجلس مشاورت کے رکن جناب ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب، اور ہمارے شہر عزیز کے مکتب مدرسے فلاح المسلمین کے صدر مفتی فہیم صاحب، یہ تینوں حضرات اہل میزان اور جج ہیں۔ اور انشاءاللہ جناب محمد یاسین اعظمی صاحب اس پروگرام کے بارے میں ضروری باتیں ہدایات دے کر پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ آغاز تیرے نام سے کار ساز دو جہاں، آغاز تیرے نام سے کار ساز دو جہاں، رحمت تیری سب سے سوا تو سب سے بڑھ کر مہربان، آغاز سخن رب کریم کے نام سے جس کے قبضے قدرت میں ہم سب کی جان ہے۔ نانگاؤں نگر پالیکا کے زیر اہتمام جاری اردو پرائمری مدارس کے اس اہم پروگرام میں شرکت کا موقع ملا۔ یقیناً بیت بازی کی یہ تقریب اس شہر کے لیے ایک منفرد تقریب ہے، اور شاید پہلی مرتبہ اس شہر کے طالبات کے درمیان اس قسم کے مقابلہ آرائی ہو رہی ہے۔ اور آج کی یہ مقابلہ آرائی یقیناً اس شہر کی تاریخ کے اندر سنہرے حرفوں میں لکھی جائے گی کہ جب اس تقریب کے بعد اس شہر میں اردو ذریعے تعلیم سے تحصیل علم کرنے والے طلبہ و طالبات شعر اور ادب کی طرف متوجہ ہوں گے، شعر کو یاد کریں گے، یاد کر کے سنائیں گے، اور جب کبھی انہیں موقع ملے گا برمحل اور برموقع ان اشعار کے ذریعے سے اردو زبان کی شیرینی کو اس نانگاؤں شہر کے اندر پھیلانے کا کارنامہ انجام دیں گے۔ میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر جناب شاہد سر کو، اس اسکول کی تمام ہی معلمات کو کہ انہوں نے اردو زبان و ادب کو فروغ دینے کے لیے، اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے بیت بازی کی یہ اہم تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں اس مقابلے کے حوالے سے ہی اس مقابلے کی شریک طالبات کو، ان کے سرپرست حضرات کو اور دیگر تمام طالبات کو متوجہ کرنا چاہوں گا کہ شعر گوئی ایک زبردست فن ہے، اور موقع کے لحاظ سے حرف یا لفظ کی مناسبت سے، تصویر کی مناسبت سے شعر کہنا بڑا مشکل کام ہے، لیکن اس مشکل کام کو آسان بنانے کا بیڑا اٹھایا ہے آج اسکول نمبر 8 کی طالبات نے، ان کی رہنمائی کی ہے ان کی معلمات نے، اور آج یہ طالبات اپنے فن کا یہاں مظاہرہ کریں گی۔ آپ انہیں بھرپور تالیوں سے انہیں داد دیجئے، ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، اور ایک بار تالیوں کے ساتھ ان تمام طالبات کا استقبال کیجئے۔ میں شریک مقابلہ طالبات کا آواز دے رہا ہوں کہ اسٹیج پر تشریف لائیں، تمام شریک مقابلہ طالبات اسٹیج پر تشریف لائیں، آئیے اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ایک بار زوردار تالیاں ان طالبات کے لیے۔ ان طالبات کے لیے 2 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، ایک اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال کے نام پر، اور دوسرے اردو زبان و ادب کی جان کہلانے والے مرزا غالب کے نام پر۔ یہ 2 ٹیمیں ترتیب دی گئی ہیں۔ ان دونوں ٹیموں کے مابین آج 3 راؤنڈ پر مشتمل یہ بیت بازی کی تقریب ہوگی، جس میں پہلا حصہ جو ہمارا ہوگا وہ حرف راؤنڈ کا ہوگا، یعنی ایک شعر کہا جائے گا، اس شعر کا آخری حرف جو ہوگا اس حرف سے مقابلے کا آغاز، اس حرف سے شعر کہا جائے گا، اور ٹیم جس حرف پر شعر کو ختم کرے گی مقابل کی ٹیم کو
उसी हर्फ से नया शेर पढ़ना होगा। शेर को सोचने के लिए ये सिर्फ 20 सेकंड का वक्त दिया जाएगा। 20 सेकंड के अरसे में ये अपना शेर सोचेंगे और सोचने के बाद अपना शेर यहाँ पर पेश करेंगे। तालिबात तवज्जो दे कि आपको सोचने के लिए सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में आप शेर सोचेंगे और सोचने के बाद सही शेर यहाँ पर पेश करेंगे। शेर सही है या गलत, इसका फैसला हमारे जज साहबान करेंगे। अगर शेर सही होगा तो हर सही शेर पर जज साहबान 2 नंबर देंगे, और अगर शेर गलत होगा तो जज साहबान उसमें से 1 नंबर कम कर लेंगे, या तीनों जज साहबान अपने तौर पर फैसला करने के बाद ये तय करेंगे कि उस शेर को नंबर दिया जाए या नहीं दिया जाए। पहला राउंड जो हमारा हर्फ राउंड होगा, दोनों टीमें 20-20 शेर कहेंगी। कितने शेर कहेंगे? 20-20 शेर दोनों टीमें कहेंगी। उसके बाद दूसरा राउंड जो होगा लफ्ज राउंड होगा। कुरान नाज़ी के जरिए से एक लफ्ज दिया जाएगा और उस लफ्ज की मुनासिबत से आपको शेर कहना होंगे, और दोनों टीमों को 7-7 शेर कहने का मौका मिलेगा। कितने शेर कहने का मौका मिलेगा? 7-7 शेर कहने का मौका मिलेगा, यानी हर टीम के हिस्से में 7 अल्फाज आएंगे, आपको 7 शेर कहना होगा। तीसरा राउंड जो हमारा होगा तस्वीर राउंड होगा। आपने पहली जमात से लेकर 7वीं जमात तक का दर्सी किताब आपने पढ़ी है। उस दर्सी किताब की तमाम तस्वीर को आपने देखा है। ऐसी कुछ तस्वीर आपको दिखाई जाएंगी, कुछ मंजर के ताल्लुक से होगी, कुछ हालात हाजरा के ताल्लुक से होगी, और यह तस्वीर देखकर आपको तस्वीर की मुनासिबत से एक अच्छा सा शेर कहना होगा। और शेर तस्वीर से मुनासिबत या मुताबिकत रखता है या नहीं, जज साहबान इसका फैसला करेंगे, और फैसला करने के बाद उसके ताल्लुक से नंबरात देंगे। तमाम राउंड के अंदर शेर सोचने के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड का वक्त होगा। 20 सेकंड में अगर आप शेर नहीं कह सके तो सामने की टीम अगर उस ताल्लुक से शेर कहती है तो उसे बोनस पॉइंट दिया जाएगा, मतलब उसे जायज नंबरात दिए जाएंगे। इसका आपको ख्याल रहेगा। आप आए हैं, जो मेहमान आए हैं, उन्हें भी इस बात का इल्म हो कि आप कौन हो, किस जमात में पढ़ती हो, किस स्कूल में पढ़ती हो, यह हम सबकी मालूमात में आ जाए। इसलिए मैं सबसे पहले मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ग्रुप की तालिबात से चाहूंगा कि वो अपना तारुफ पेश करें। तारुफ में आपको अपना पूरा नाम बतलाना है, अपनी क्लास बतलाना है और अपनी स्कूल का नाम बतलाना है। खाटिक फायजा एजाज जमात हफ्तोम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे। खाटिक फायजा, इसके बाद अस्सलाम वालेकुम। जमीलिया फिरोज मोमिन जमात हफ्तोम नगर पालिका उर्दू स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे। शेख सहना जमात हफ्तूम स्कूल नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत खूब, बहुत अच्छे। अंसारी जुबिया रफीक क्लास हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। सुमैया इमरान खान जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल। बहुत अच्छे। यह है वो 5 खुशनसीब तालिबात जो आज नुमाइंदगी करेंगे अपनी इस क्लास की, अपनी स्कूल की, और इनकी टीम का नाम है मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ रखें। इसके बाद मैं चाहूंगा अल्लामा इकबाल ग्रुप की तालिबात अपना तारुफ पेश करें। अरबिया इरशाद खान जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे। अरबिया इरशाद खान, तशरीफ रखें। तंबोली तरीफा जावेद जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8। बहुत अच्छे, वेरी गुड, शाबाश। खाटिक आफिया जावेद जमात हफ्तूम नगर परिषद उर्दू स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे। अक्सर फिरोज शाह जमात हफ्तूम स्कूल नगर परिषद स्कूल नंबर 8 नांदगांव। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। शेख साइमा एजाज क्लास हफ्तूम नगर परिषद स्कूल नंबर 8। वेरी गुड। शेख साइमा, ये है वो 5 खुशनसीब तालिबात जो आज अल्लामा इकबाल ग्रुप की नुमाइंदगी करेंगी। आइए आगाज करें हम हर राउंड से, और इस मुकाबले के आगाज से कबल हम इनके दरमियान टॉस करेंगे। जो टीम टॉस जीतेगी
وہ فیصلہ کرے گی کہ پہلے حرف سے وہ شعر شروع کریں گے یا مقابل کی ٹیم. اس لیے میں دونوں ٹیم کے جو کیپٹنس ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ آگے تشریف لے آئیں. اور آج کے ہمارے مہمان خصوصی محترم جناب الحاج قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور ٹاس کے ذریعے سے آج کے اس مقابلے کا افتتاح فرمائیں. جناب الحاج قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب، ہیڈ ماسٹر ایرم 3 پرائمری و پرائمری اسکول، وہ ڈاکٹر پی ایم رحمانی گرلس پرائمری اسکول اینڈ ہائی اسکول. الحاج قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب کی اسکول اپنے آپ میں ایک مثال رکھتی ہے کہ شہر عزیز مالیگاؤں کے اندر مختلف قسم کے تقریری، ثقافتی اور تہذیبی پروگرام کے اندر آپ کا رہنمایا کردار رہا ہے. آج کی اس تقریب کے ٹاس کے ذریعے سے وہ اس مقابلے کا آغاز کریں گے. آپ لوگ شروعات کریں. کون شروعات کرے گا؟ آپ لوگ شروع کریں گے. لیجئے، ڈاکٹر علامہ اقبال گروپ نے ٹاس جیتا ہے اور اس ٹیم کی کیپٹن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ مقابلے کا آغاز وہ ٹیم کے لوگ کریں گے. میں چاہوں گا کہ اس مقابلے کے لیے ایک اچھا سا شعر سنانے کے لیے میں آج کی تقریب کے جج اس شہر کے مفتی محترم سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور ایک اچھے سے شعر سے اس ہر راؤنڈ کا آغاز فرمائیں. محترم جناب مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ایک اچھے سے شعر سے آج کے اس مقابلے کا آغاز فرمائیں. اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، اپنے کردار پہ ڈال کے پردہ اقبال، ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے. یہ سے شعر کہنا ہے آپ کو. یہ وہ قوم ہے جو خواب خرگوش میں جیتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو خواب خرگوش میں جیتی ہے. یہ وہ قوم ہے جو چاکے دامن کو بھی سیتی ہے. اور کتنی مثالیں دوں تجھے میں اس قوم کی. ارے یہ وہ قوم ہے جو جرت سے جام شہادت بھی پیتی ہے. جرت سے جام شہادت بھی پیتی ہے. یہ سے آپ کو شعر کہنا ہے. یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، یہ سانحہ بھی محبت میں بارہا گزرا، کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. واہ، بہت خوب. کسی نے حال بھی پوچھا تو آنکھ بھر آئی. یہ سے یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست نا سے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہے دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا. الف سے اس جنوں نے تجھے تعلیم سے بیگانہ کیا، اس جنوں نے تجھے تعلیم سے بیگانہ کیا، جو یہ کہتا تھا خرد سے بہانے نہ تراش. خرد سے بہانے نہ تراش. شین سے شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں جیتا، شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں جیتا، پردم ہے اگر تو نہیں خطرے استاد. استاد. دال سے آپ کو شعر کہنا ہے. دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو، دکھ دیکھ کر سوال کرتے ہو، تم بھی غالب کمال کرتے ہو. دیکھ کے پوچھ لیا حال میرا، دیکھ کے پوچھ لیا حال میرا، چلو کچھ تو میرا خیال کرتے ہو. واہ واہ، بہت خوب بہت خوب. بہت اچھے انداز سے غالب کا یہ شعر پڑھا اور شعر کا اختتام ہوا حرف واو پر. وہ لوگ جنہوں نے خو دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے، وہ لوگ جنہوں نے خو دے کر اس چمن کو زینت بخشی ہے،
दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। वाह वाह वाह, गुमनाम न जाने कितने हैं। नून से नाले बुलबुल के सुनो और हम तनगोश रहूं, नाले बुलबुल के सुनो और हम तनगोश रहूं, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। वाह, हम नवा मैं भी कोई गुल हूँ कि खामोश रहूं। नून से नजरअंदाज मत करना, समझ कर रखना चिंगारी, नजरअंदाज मत करना, समझ कर रखना चिंगारी, ये शोला बन भी सकती है, जला सकती है महलों को। वाह, बहुत जबरदस्त शेर कहा। लोगों, वाह से आपको शेर कहना है। वो बिजली का करता था या सौते हादी, वो बिजली का करता था या सौते हादी, अरब की जमीन जिसने सारी हिला दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी, एक आवाज में सोई बस्ती जगा दी, नई एक लगन सबके दिल में लगा दी। वाह, बहुत अच्छे। नाच के हवाले से खूबसूरत शेर। आपको कहना है हर ये से। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शय मुश्किल कुशा का साथ हो। वाह, मुश्किल कुशा का साथ हो। वाह से शेर कहना है आपको। वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, और तुम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। वाह, और तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। बहुत दिलचस्प ये बेबाजी का मुकाबला चल रहा है। अब तक दोनों टीमें बराबर के साथ एक दूसरे का पीछा कर रही हैं, और ये तालिबात जिस लबो लहजे में, जिस अंदाज में अकार की खामदगी कर रही है, वाकई काबिल दाद है। जोरदार तालियां एक बार इनके लिए बजाइए। और मैं गुजारिश करूंगा लम्हा इकबाल टीम से कि वो हर रे से अपने शेर का आगाज करें। रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। वाह, रफीकों से रकीब अच्छे जो जलकर नाम लेते हैं, गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं। नून से नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सभी को आता है, मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साकी। वाह, मजा तो तब है जब गिरतों को थाम ले साकी। ये से यकीमों का अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, यकीमों का अमल पे हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जहाँ दिल जिंदगानी में है मर्दों की शमशीरें। बहुत अच्छे। यकीमों कम अमल पर हम मोहब्बत पाते हैं आलम, जहाँ दे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। आज इस शहर के अंदर जहाँ उर्दू के सिर्फ 3 स्कूल हैं, जहाँ एक मुख्तसर आबादी उर्दू बोलने वालों की है, एक ऐसी बस्ती के ऐसे नन्हे मुन्ने तालिबात इतने एतमाद के साथ, इतने यकीन के साथ अशार पढ़ रहे हैं। यकीन नहीं आता हमारी समातों को कि इस छोटे से शहर की तालिबात ने इतना अच्छा अशार का जखीरा किया होगा। मुबारकबाद के मुस्तहिक है इनके असातिज़ा और ये तालिबात और इनके सरपरस्त। जोरदार तालियां इनके सरपरस्तों और इनके असातिज़ा के लिए। आप कहेंगे शेर नून से। जहादे जिंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें। नून से निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाहे इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरका वही यासीन वही तोहा। बहुत अच्छे। ताहा। हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना। बहुत अच्छे। एक जबरदस्त अज़्म का इजहार करते हुए एक अच्छे शेर का इंतखाब। मुबारकबाद बेटी आपको कि आपने एक अज़्म का, एक हौसले का पैगाम दिया। मरेंगे हम किताबों पर वर्क होगा कफन अपना। अलिफ से आपको शेर कहना है। आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबले रूहों के बोस हुई कौम हिजाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज,
बंदा नमाज। वाह, बहुत अच्छे। एक बेहतरीन हर्फ पर इन्होंने शेर का इख्तिताम किया। बंदा नवाज जे से आपको शेर कहना है। जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, जमीन चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। वाह, बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, ये मसाइल तसव्वुफ ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो तू न बादख्वार होता। तुझे हम वली समझते जो न तू बादखार होता। अलिफ से। अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना, नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। बहुत अच्छे। फितना हे से आपको शेर कहना है। जब साहबान इस बात पर तवज्जो दे कि 20 शेर जब मुकम्मल हो तो मुझे इशारा कर दे। है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, है यही मेरी नमाज, है यही मेरा वुजू, मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। मेरी नवाओं में है मेरे जिगर का लहू। वाह से। वो नहीं मौत सही, मौत नहीं नींद सही, वो नहीं मौत सही, मौत नहीं नींद सही, कोई तो आ जाए शबे गम का मुकद्दर बन जाए। शबे गम का मुकद्दर बन जाए। ये से। ये जो खुली खुली थी अदावतें मुझे नाज थी, ये जो खुली खुली थी अदावतें मुझे नाज थी, ये जो जहर कुल सलाम थे मुझे खा गए। मुझे खा गए। ये से। ये अकामत हमें पैगाम सफर देती है, ये अकामत हमें पैगाम सफर देती है, जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। जिंदगी मौत के आने की खबर देती है। ये से। या मुझे वस्ल अता कर मालिक, या मुझे वस्ल अता कर मालिक, या मेरा हिज्र मुकम्मल कर दे, या मेरा हिज्र मुकम्मल कर दे। ये से। ये जानता हूँ कि कुछ नहीं है बताए इल्मो कमाल मेरी, ये जानता हूँ कि कुछ नहीं है बताए इल्मो कमाल मेरी, मगर ये है तेरी दस्तरस में खजब को मोती का रंग दे दे। उरूज आए वो पस्तियों पर बुलंदियां भी अरक अरक हो, उरूज आए वो पस्तियों पर बुलंदियां भी अरक अरक हो, खिजा की वीरान वुसअतों को बहार का जल तरंग दे दे। बहार का जल तरंग दे दे। खिजा की उसतों को बहार का जल तरंग दे दे। ये से। ये शिकायत नहीं है इनके खजाने मामूर, ये शिकायत नहीं है इनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात करने का शऊर, कहे तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, कहे तो ये है कि काफिर को मिले हूर कसूर, और बेचारे मुसलमानों को फकत वादे हूर। फकत वादे हूर। रे से। रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, रास्ता भी कठिन धूप में शिद्दत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी, साए से मगर उसको मोहब्बत भी बहुत थी। ये से। या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, या रब दिले मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। वाह, बहुत अच्छा। ये से। यही दिल था कि तरसता था मरासिल के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिल के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मांगे, तरके ताल्लुक के बहाने मांगे। ये से। ये ना कि हमारी किस्मत के विशाल यार होता, ये ना कि हमारी किस्मत के विशाल यार होता, अगर और जीते रहे तो यही इंतजार होता, इंतजार होता। अलिफ से। अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, अफसोस सद अफसोस के शाही न बना तू, देखे न तेरी आंख ने फितरत के इशारात, फितरत के इशारात। ते से। तुझको छू ले कि तेरी दस्त कफे पा छू ले,
महताब अभी, ये से ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये कहता है बदले हुए मौसम का इशारा, ये जिंदगी हो जाएंगी अपनी भी सबूताज, अपनी भी सबूताज। जैसे जोलिदा हाल देखकर पूछा जब उसने हाल, जोलिदा हाल देखकर पूछा जब उसने हाल, कहना पड़ा कि खूब हूँ, अच्छा हूँ, ठीक हूँ। अच्छा हूँ, ठीक हूँ। जे पर यह शेर जब खत्म हुआ तो मुझे लगा कि शायद अब कोई टीम हार जाएगी, क्योंकि अगर मैं मुकाबले में होता तो शायद जे से ये शेर नहीं सुना पाता जो शेर इस बच्ची ने कहा। बहुत खूब बच्चियों, आपने बहुत जबरदस्त मेहनत किया है। आपके अचार के इंतखाब की मैं दाद देता हूँ। इस राउंड का आखिरी शेर अल्लामा इकबाल गुरु। लुत्के रसूल पाक का एजाज यही तो था, लुत्के रसूल पाक का एजाज यही तो था, करने लगे जो प्यार की बातें अरब के याज, अरब के यार। चलिए आपको भी उसी से करना है। जैसे ज़ौलीदगी पज़मुर्दगी बेचारगी आवारगी, ज़ौलीदगी पज़मुर्दगी बेचारगी आवारगी, तेरे खुद से सब कुछ मिला, तेरा प्यार ही ना मिला फकत। वाह, बहुत अच्छे। अगर मुकाबला आगे जारी होता तो इन्हें थोड़े से शेर कहना होता, लेकिन चूंकि हमारे पास वक्त की कैद थी, यहाँ पर दोनों टीमों ने 20-20 अशार सुनाए और हर टीम ने एक बेहतरीन शेर सुनाए। अच्छा इंतखाब, अच्छी पेशकश, आप सब मुबारकबाद के मुस्तहिक। और दोनों टीमों ने शायद इस राउंड में बराबर नंबरात लिए हैं। आइए अगले राउंड की तरफ चलते हैं। अगला राउंड हमारे लिए हर्फ राउंड। इन तालिबात को हर्फ दिए जाएंगे और लफ्ज दिए जाएंगे और ऐसा शेर इन्हें कहना होगा कि वो लफ्ज उस शेर में आए। बहुत दिलचस्प मुकाबला होगा, बहुत अच्छा मुकाबला होगा और इस अहम और दिलचस्प मुकाबले के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात, मेरी नेक तमन्नाएं तमाम तालिबात के लिए कि जो लफ्ज आपके हिस्से में आ रहे हैं आप 20 सेकंड इस पर गौर कीजिए। गौर करने के बाद आप ऐसा शेर कहिए जिसमें वो लफ्ज आ रहा हो। एक बार फिर अल्लामा इकबाल ग्रुप से ही इस राउंड का आगाज होगा। 7-7 अशार दोनों टीम कहेंगे। पहला लफ्ज जो आ रहा है अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, वो लफ्ज आ रहा है शहर। आपको शहर के हवाले से एक शेर कहना है। ताना जन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, ताना जन है क्यों मेरी बेसरो सामानी पर, एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। वाह, बहुत खूब। एक नजर डाल जरा शहर की वीरानी पर। बहुत खूब, बहुत अच्छे, बेहतरीन शेर कहा आपने। मिर्जा गालिब ग्रुप के लिए लफ्ज आ रहा है। जोर से बोलिए। आपको कहना है नजारा। अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, अदब से हाथ बांधे उनके रोजे पर खड़े होंगे, सुनहरी जालियों का यूं नजारा हम भी देखेंगे। वाह वाह बेटा, बहुत अच्छे। अल्लाह ताला तुम्हारी जबान को मुबारक करे और उस दर अक़दस पर हाजिरी आपका मुकद्दर आपका नसीब पड़े। अगला शेर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। बहुत अच्छे, वेरी गुड। आपको कहना है ख्वाब के ताल्लुक से। ख्वाब थे जितने टूट गए, ख्वाब थे जितने टूट गए, शीशों के घर फूट गए, एक नया अंधेर तो देखो, घर वाले घर लूट गए। वाह, एक नया अंधेर तो देखो, घर वाले घर लूट गए। आज बड़ा अलमिया हमारे साथ ये रहा है कि हम लोग जो उर्दू तहजीब के दिलदादा हैं, उर्दू जबान व अदब पढ़ते हैं, आज कुछ लोग उर्दू बोलने वाले चाहते हैं कि उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम और दीगर मीडियम में तालीम हासिल करें।
आज उन सरपरस्तों के लिए, उन वालिदैन के लिए ये बच्चियां एक हाथ दिखा रही हैं कि आप भी अपने बच्चों को उर्दू मीडियम में तालीम दिलाकर उन्हें कामयाब इंसान बना सकते हो, एक अच्छा मुदर्रिस बना सकते हो, एक बेहतरीन डॉक्टर बना सकते हो, एक अच्छा वकील बना सकते हो। आइए अगले हर्फ की तरफ चलते हैं और ये अगला हर्फ होगा, लफ्ज होगा सॉरी, मिर्जा असदुल्ला खां ग्रुप के लिए। और एक बार फिर इस लफ्ज को पढ़ेंगी ये तालिबात, अमल। अमल। हर मुसलमान रग बातिल के लिए नश्तर था, हर मुसलमान रग बातिल के लिए नश्तर था, उसके आईने हस्ती में अमल जौहर था, जो भरोसा था उसे कुव्वत बाजू पर था, है तुम्हें मौत का डर तो उसको खुदा का डर था। वाह बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खूब। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए तालिबात पढ़ेंगे, जवाल। जवाल। मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मुंतजिर मेरे जवाल के हैं, मेरे अपने भी कमाल के हैं। वाह, मेरे अपने भी कमाल के हैं। ये लड़कियां वाकई बहुत कमाल की हैं कि इन्होंने इतने अच्छे अच्छे अशार याद किए हैं और यहाँ सुना रहे हैं। और आप भी बहुत कमाल के हो कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी की तालिबात हो और इतनी रवानी के साथ इन अल्फाज को पढ़ लेती हो। जरा लफ्ज पढ़ के बताइए, क्या लिखा है? मदीना। सर उल्टा भी पढ़ दिए। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। वाह 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 बेटा, माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या लिखा है? ज़र्फ। ज़र्फ। जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। वाह, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। बहुत खूब बेटा। लीजिए अगला लफ्ज असदुल्ला खां गालिब के लिए, सादगी। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। वाह, मेरी सादगी देख मैं क्या चाहता हूँ। यकीनन ये तालिबात चाहती होंगी कि जिस तरह से आज तक ये 7वीं जमात तक इतनी शीरीन जबान को सीखते आई हैं, पढ़ते आए हैं, अल्लाह करे आगे की तालीम भी उनकी उर्दू के जरिए से ही मुकम्मल हो और उर्दू जबान का परचम लेकर ये इल्म और अमल के मैदान में वारिद हो, ताकि हमारा समाज और हमारा माशरा, जो आज बहुत जरूरत है कि खवातीन और तालिबात आगे बढ़े, खुदा करे ये तालिबात उर्दू का परचम लेकर उठे और उर्दू के हवाले से ही अपनी आने वाली नस्लों की आबियारी करें, उन्हें अखलाक व आदाब का दर्स दें। लफ्ज आया है आपके हिस्से में तकदीर। देखे तकदीर आपके साथ क्या फैसला करती है, जीत या हार। तकदीर। खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना के हर तकदीर से पहले, खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। वाह, जज साहबान इस शेर पर तवज्जो दें। अगला लफ्ज असदुल्ला खां गालिब के लिए, गुफ्तार। नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, नाज है ताकत गुफ्तार पे इंसानों को, बात करने का सलीका नहीं नादानों को। वाह, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगला लफ्ज आपको कहना है आंसू। आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है, आंख में जो आंसू है कौन इसका सानी है, जो रुक गया वो मोती है, जो बह गया वो पानी है। वाह, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड।
अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। सलीके से हवाओं में रस घोल सकते हैं, सलीके से हवाओं में रस घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। बहुत अच्छे। 6 अशार इन दोनों टीमों ने यहां पर पढ़ चुके हैं। एक एक शेर और इन्हें कहना है। मां पर आपको शेर कहना है। रब ने माँ को ऐसी अजमतें मिसाल दी, रब ने माँ को ऐसी अजमतें मिसाल दी, उसकी रुबाओं पर आई मुसीबत टाल दी। कुरान ने माँ की ऐसी मिसाल दी, जन्नत उठाकर उसके कदमों में डाल दी। वाह, बहुत खूब, बहुत अच्छे शेर का इंतखाब। आखिरी शेर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। आईना। वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, किसी किसी को खुदा ये कमाल देता है। वाह, वो आईने को भी हैरत में डाल देता है, खुदा किसी किसी को ये कमाल देता है। शेर कहना, बरवक्त शेर कहना, दिए गए लफ्ज पर शेर कहना, हर्फ से शेर कहना, ये बहुत कमाल की बात है और आप लोगों ने बहुत कमाल का मुजाहिरा किया कि दूसरा राउंड भी बहुत ही जबरदस्त रहा। आप तमाम तालिबात ने अच्छे अशार का इंतखाब किया, मुबारकबाद आप लोगों के लिए। लीजिए तीसरा और आखिरी राउंड आप सबके लिए, तस्वीर राउंड। इस तस्वीर राउंड में पहले आप सबको तस्वीर दिखाई जाएगी, उसके बाद इन बच्चों को तस्वीर दिखाई जाएगी। 20 सेकंड ये तस्वीर को देखेंगे और देखने के बाद उस तस्वीर की मुनासिबत से एक अच्छा सा खूबसूरत शेर कहेंगे। आज जज साहबान फैसला करेंगे कि ये शेर तस्वीर से मुताबिकत रखता है या नहीं। हर टीम को 5-5 तस्वीर दिखाई जाएंगी। 5-5 में हर टीम को 5-5 तस्वीर दिखाई जाएंगी और 5 शेर कहना रहेंगे। रेडी? तैयार हैं आप? अगर मेरा फोटो दिखाऊं तो कौन सा शेर कहोगे? हर छाप पे उल्लू बैठे हैं। पहली तस्वीर इसे मैं नहीं देखा तुमको, लेकिन आपको दिखा रहा हूं। ये तस्वीर जो नजर आ रही है, इस तस्वीर के हवाले से इन तालिबात को शेर कहना होगा। आप तस्वीर अपने पास रख सकते हैं, इत्मीनान से देखिए। 20 सेकंड में इनको तस्वीर देखकर शेर कहना। दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल न सका खताओं को छोड़कर, हैरान हूँ मैं अपनी हसरतों पर एक बार, हर चीज खुदा से मांग ली मगर खुदा को छोड़कर। वाह, बहुत ही जबरदस्त शेर का इंतखाब किया उन्होंने दुआ के हवाले से। बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। अगली तस्वीर, ये तस्वीर आप सिर्फ देखिए, मेहमानान जज साहबान भी इस तस्वीर को देखें और ये तस्वीर इन बच्चियों के हवाले। वक्त शुरू होता है। दुख तरे हवा को हासिल हो गया जीने का हक, दुख तरे हवा को हासिल हो गया जीने का हक, ए रसूले हाशमी ये आपका फैजान है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत खूब। पर्दा नशी खवातीन की तस्वीर के हवाले से सीरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बहुत ही खूबसूरत शेर का इंतखाब किया इस तालिबा ने। बहुत खूब। अगली तस्वीर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। ये तस्वीर, इस तस्वीर के हवाले से शेर कहेगी अल्लामा इकबाल ग्रुप की तालिबा। तमाम रात समंदर में महताब रहा, तमाम रात समंदर में महताब रहा, अजीब हुस्न का माहौल ज़ेरे आब रहा, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, निशाने सजदा से मेरी जबी मुनव्वर थी, मैं अपना ऐब छुपाने में कामयाब रहा। बहुत अच्छी तस्वीर थी, निजाम शमसी फलकियात की तस्वीर थी और इस हवाले से तालिबा ने शेर कहा। जज साहबान तस्वीर की लिहाज से इस शेर को देखें।
और ये अगली तस्वीर असदुल्ला खान गालिब इस ग्रुप के लिए। इस तस्वीर की मुनासबत से शेर कहेंगे ये तालिबात। वक्त शुरू होता है अब। यूं न झांको गरीब के दिल में, यूं न झांको गरीब के दिल में, यहाँ हसरतें बेलिबास रहती है। वाह वाह वाह, यहाँ हसरतें बेलिबास रहती है। बहुत अच्छे। अगली तस्वीर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। इस तस्वीर के लिए शेर कहेंगे ये तालिबात। वक्त शुरू होता है अब। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई, अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगली तस्वीर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ग्रुप के लिए और इस ग्रुप का वक्त शुरू होता है अब। ये फैजान नजर था या कि मकसद की करामत थी, ये फैजान नजर था या कि मकसद की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। वाह, बहुत अच्छे। ये मकसद की करामत थी या फैजान नजर था, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। अगली तस्वीर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। इनका वक्त शुरू होता है अब। ईद को मिलते हैं सब शिकवे दे गिलों को छोड़कर, ईद को मिलते हैं सब शिकवे दे गिलों को छोड़कर, है ये एक दिन आपसी चाहत का पीकर ईद का। शेर की खानदगी की तालिबान है। जज साहबान की तवज्जो मखलूब है। अच्छा शेर था। बहरहाल जज साहबान इस हवाले से फैसला कर ले। अगली तस्वीर 4 हो गई है ना, इनकी 4 हो गई है, इनकी चौथी तस्वीर है और ये चौथी तस्वीर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। जज साहबान और टीम के लिए वक्त शुरू होता है अब। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो वो बचपन का सामन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जफर सर, शेर आपने सुना, तस्वीर आपने देखी और शेर के लिहाज से आप नंबरात के लिए आप तय करें। 5वीं और आखिरी तस्वीर अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए। इस तस्वीर की मुनासबत से शेर कहेंगे बच्चियां। इनका वक्त शुरू होता है अब। गर फिरदौस से बर रुए जमीन است, गर फिरदौस से बर रुए जमीन است, हमीन است, हमीन است, हमीन است। जज साहबान, आपकी तवज्जो इस शेर की तरफ। आखिरी तस्वीर असदुल्ला खान गालिब ग्रुप के लिए। इनका वक्त शुरू होता है अब। कत्ल खू आग दहशत गरी यहाँ, कत्ल खू आग दहशत गरी यहाँ, कौन कहता है कि आजाद है हम। कौन कहता है कि आजाद है हम। बहुत अच्छे अशार इन दोनों टीम की तालिबात ने यहाँ पर तस्वीर के मुतालिक कहा। यहाँ पर हमारा तस्वीर राउंड मुकम्मल होता है। जज साहबान नंबरात को टोटल कर रहे हैं। शेर का इंतखाब, शेर के पढ़ने का तरीका और सलीका, तलफ़्फ़ुज़ को पेश नजर रखते हुए जज साहबान अपने
फैसले को मुकम्मल कर रहे हैं। अगर मैच टाई रहा तो हर राउंड के लिए 5-5 अशार कहना होंगे। लफ्ज के लिए आपको कितने अल्फाज बचे हैं? शायद 6 लफ्ज बचे हैं, 3-3 कहना होगा और कुछ तस्वीर के ताल्लुक से कुछ अशार आपको कहने होंगे अगर मैच टाई हुआ तो। मैं तालिबात से चाहूंगा कि इत्मीनान से बैठे रहें। अभी मुकाबले का इख्तिताम नहीं हुआ है। ये बच्चियों ने बहुत मेहनत की है। मैं समझता हूं कि हफ्तों क्या महीनों इन्होंने इन अशार के इंतखाब के लिए लगाए होंगे, इन्हें याद किए होंगे, इन्हें पढ़ने का तरीका अपने असातिज़ा से सीखा होगा, बहुत मशक़ की होगी और आज स्टेज पर इतनी बेबाकी के साथ, इतनी उम्दगी के साथ इन तालिबात ने अपने फन का मुजाहरा किया है। इन्हें इनके फन के लिए दाद चाहिए। आप तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। थोड़ी ही देर में हमारे जज साहबान इस मुकाबले का नतीजा निकालकर आपको बतलाएंगे कि अल्लामा इकबाल ग्रुप और मिर्जा असदुल्ला खां गालिब ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में से किस टीम ने ज्यादा नंबरात हासिल किए हैं। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे जो रूह को तड़पा दे, जो कल्ब को गरमा दे। यकीनन आज के इस मुकाबले में शिरकत के बाद ये एहसास हुआ कि नांदगांव म्यूनिसिपल स्कूल बोर्ड नांदगांव के जेर इंतजाम जारी इस स्कूल के सभी मुदर्रिसीन ने एक बहुत ही अच्छी खुशखबरी इन तालिबात के लिए भी और इस स्कूल के लिए भी कि इन बच्चियों ने जिस तरह से अपने फन का मुजाहरा किया है और जिस बेबाकी के साथ, जिस उम्दगी के साथ अशार का इंतखाब किया है, उनकी इस जुर्रत पर, उनकी इस कोशिश पर, इनकी हौसला अफजाई के लिए इन तालिबात के साथ साथ स्कूल को इस्तेहकाम अता करने के लिए स्कूल की को और इन तालिबात को नकद इनाम देने का ऐलान किया है। आज की इस तकरीब के मेहमान मोहतरम जनाब अशफाक कैसर साहब, इनकी जानिब से इन तमाम तालिबात को और स्कूल को नकद 3,500 रुपया दिया जा रहा है। तालियों के साथ मैं चाहूंगा कि इस स्कूल के सदर मुदर्रिस और हमारे नांदगांव के अकील टेलर साहब, इन्होंने भी इसके अंदर अपना ताउन शामिल किया है। मेहमानान के तमाम ताउन से ये इनाम तफवीज किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि स्कूल के सदर मुदर्रिस जनाब शाहिद सर यहाँ आए और अपना इनाम हासिल कर लें। इनमें बच्चियों का भी इनाम शामिल है और स्कूल के लिए भी शामिल है। आप अपने तौर पर फैसला कर दें। दूसरा एक इनाम, शुक्रिया बहुत। आज हमारी इस तकरीब में मेहमान खास की हैसियत से शरीक अलहाज कुरैशी मुख्तार अहमद मोहम्मद ईसा साहब, जिनकी स्कूल में इससे कबल बैतबाजी का शानदार तकरीब मुनक्किद हो चुकी है और वहां पर तकरीबन 6 राउंड पर मुश्तमिल ये मुकाबला था। लेकिन मुकाबला करने वाली तालिबात 8वीं और 9वीं जमात की तालिबात थी। आज यहां पर 7वीं जमात की तालिबात ने मुकाबला आराई की। स्कूल के हेडमास्टर साहब ने शरीक मुकाबला तमाम तालिबात के लिए उनकी अपनी स्कूल में मुनक्किद होने वाले तकरीरी मुकाबलों की एक शानदार किताब यहां पर आपके लिए तोहफतन लाई है। मैं कुरैशी सर से गुजारिश करूंगा स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से उनकी अपनी स्कूल की तकरीरी किताबों का एक 2 सेट जो है इस्लामी तकारीर और 44 तकारीर का मजमुआ, ये 2 किताबें हैं। कुरैशी मुख्तार सर अपने दस्ते मुबारक से इन तमाम 10 तालिबात को तफवीज कर रहे हैं। जोरदार तालियां इन बच्चियों के लिए। इस किताब में बहुत ही दिलचस्प 44 तकारीर और एक किताब में 25 तकारीर है। ये समझिए कि 74 तकारीर इन तालिबात तक पहुंच रही है। इन 74 तकारीर के अंदर दिलचस्प अशार भी हैं,
بہترین عنوانات بھی ہیں، یہ ان بچیوں کے حوالے کر رہے ہیں قریشی مختار احمد محمد عیسیٰ صاحب۔ علامہ اقبال مرزا اسد اللہ خان غالب ٹیم کو مختار قریشی صاحب کتابیں تفویض کرتے ہوئے زوردار تالیاں ان بچیوں کے لیے، ان کے ذوق مطالعہ کی تسکین کے لیے اسلامی تقاریر کا سیٹ جس میں 25 اہم تقاریر اسلامیات کے حوالے سے ہے، قرآن، حج، زکوٰۃ اور سیرت، ان 5 اہم عنوانات پر مشتمل 25 تقاریر، اور دوسرا سیٹ ہے 44 تقاریر کا گلدستہ، اس میں موقع کے لحاظ سے کچھ عنوانات دیے گئے ہیں، اس پر مشتمل 44 تقاریر ہے۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری تقریب میں اس اسکول کی معلمہ محترمہ فوزیہ آپا کے والد محترم بھی تشریف فرما ہے۔ انہوں نے ان طالبات کو 1000 روپیہ نقد انعام کا اعلان کیا ہے۔ میں دونوں ٹیم کے کیپٹنز کو آواز دے رہا ہوں کہ وہاں آئیں اور یہ 1000 روپیہ کا انعام حاصل کر لیں، بعد میں آپ کے ٹیچرز آپ کو دے دیں گے۔ یہ فوزیہ آپا کے والد صاحب کی جانب سے یہ 1000 روپیہ کا انعام ہے جو ان بچیوں کے حوالے کیا گیا۔ آج ان بچیوں کی خدمت میں میری جانب سے ایک فولڈر فائل تمام بچیوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ 7ویں کے بعد آپ 8ویں میں جائیں گے تو آپ کو پہلا سرٹیفکیٹ ملے گا پرائمری ایجوکیشن مکمل کرنے پر۔ اس کے بعد آپ کے پاس سرٹیفکیٹس کی قطار لگ جائے گی جنہیں سنبھال کر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، اس لیے آج آپ کے حوالے یہ فائل، اس فائل میں آپ اپنے تمام سرٹیفکیٹس کو سنبھال کر رکھیے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے درمیان موجود ہیں جناب انور انجم سر، جو میرے بزرگ بھی ہیں، میرے بہت ہی قریبی بھی ہیں۔ میں انجم سر سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے یہ فولڈر فائل ان 10 طالبات کو تفویض کریں۔ زوردار تالیوں کے ساتھ ان طالبات کے حوالے کیے جا رہا ہے یہ فولڈر فائل۔ پاٹل اوپر چڑھ جائے ایک جو ہے سب کو سر ذرا سہتا دیجیے۔ اسی طرح اسد اللہ خان غالب اس ٹیم کے ذمے بھی یہ فولڈر فائل دیے جا رہے ہیں۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہماری ذاکرہ آپا کے والد جناب انور انجم حسین سر، جو مالیگاؤں میونسپل اردو پرائمری اسکول کے سبکدوش ہیڈ ماسٹر ہیں، ان کی جانب سے آج کی تقریب میں شریک تمام طالبات کے لیے انہوں نے 1000 روپیہ انعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ میں یہ انعام شاہد سر کے حوالے کر رہا ہوں کہ وہ اپنے طور پہ تمام شریک مقابلہ طالبات کو انعام تفویض کر دیں۔ جج صاحبان نے اپنے نتائج سے مجھے آگاہ کر دیا ہے، جیسا کہ توقع تھی کہ دونوں ٹیم کی تیاری بہت بھرپور ہے، دونوں ٹیم کی طالبات نے بہت ہی عمدگی کے ساتھ تیاری کی ہے، بہت ہی دلچسپ اشعار سنا ہے۔ جج صاحبان کے فیصلے کے مطابق دونوں ٹیم نے جو نمبرات حاصل کیے ہیں دونوں کے نمبرات برابر ہیں، اس لیے ہار اور جیت کا فیصلہ نہیں ہونے پایا۔ اب ہار اور جیت کا فیصلہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ ان کو دیے جائیں گے اور کچھ تصاویر دکھائی جائیں گی
और अगर इसके बाद भी कुछ फैसला रुकता रहा तो फिर हम अपने तौर से ये लफ्ज देंगे और उस पर हम फैसले का फैसला करेंगे। लीजिए, लफ्ज दिया जा रहा है मिर्जा गालिब डॉक्टर अल्लामा इकबाल ग्रुप को शराब। आपको शराब के ताल्लुक से शेर कहना है। ऐसी तारीखियां आंखों में बसी है कि फराग, ऐसी तारीखियां आंखों में बसी है कि फराग, रात तो रात है हम दिन को जलाते हैं चराग। वेरी गुड, रात तो रात हम दिन को जलाते हैं चराग। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, चश्म। वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, वो अक्स बन के मेरी चश्मे तर में रहता है, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। वाह, अजीब शख्स है पानी के घर में रहता है। अगला लफ्ज अल्लामा इकबाल ग्रुप के लिए, वफा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। वाह, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। आइए अगला लफ्ज असदुल्लाह खां गालिब ग्रुप के लिए, इल्म के ताल्लुक से आपको शेयर करेंगे। ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, ये इल्म, ये हिकमत, ये तदब्बुर, ये हुकूमत, पीते हैं लहू देते हैं तालीम मुसावात। तालीम मसावात, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अगला लफ्ज मौसम। यूं ही नहीं बर्गो समर लहलहाए है, यूं ही नहीं बर्गो समर लहलहाए है, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए। वाह, यूं ही नहीं ये बर्गो समर लहराए हैं, पेड़ों ने मौसमों के बहुत दुख उठाए हैं। बहुत अच्छे। आखिरी लफ्ज शौक। मेरे शौक की यही नाजरत, मेरे शौक की यही नाजरत, वो जो दूर है बहुत दूर है। वाह, बहुत अच्छे। मैं समझता हूँ ये 5-5 अल्फाज भी बराबरी पर खत्म हुए, इसलिए मैं अपनी तरफ से इन्हें एक लफ्ज देता हूँ। रिजल्ट आ गया, लफ्ज देने की जरूरत नहीं, तस्वीर दिखाना है। नहीं, यहाँ पर दोनों टीमों के लिए 3-3 अल्फाज दिए गए थे और इन अल्फाज के मुताबिक इन तालिबात ने शेर कहे। शेर तो मैं समझता हूँ दोनों टीमों ने अच्छे पढ़े, लेकिन इनकी खानदगी और इनके तलफ़ुज़ को पेश नजर रखकर जज साहबान अपना फैसला कर रहे हैं और इस फैसले का ऐलान करेंगे हमारे मुफ्ती साहब कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। इन तालिबात को 1000 रुपये का इनाम अल्तमश भाई कुरैशी, नांदगांव के अल्तमश भाई कुरैशी ने दोनों टीमों को 500-500 रुपया नकद इनाम देने का ऐलान किया है। मैं अल्तमश भाई से गुजारिश कर रहा हूँ स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्तमश भाई आ जाइए, इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। आप अपने दस्त मुबारक से दोनों टीम के कैप्टन को 500-500 रुपये का इनाम दीजिए, बाद में इनके असाजा इसको तकसीम कर देंगे। बहुत शुक्रिया अल्तमश भाई, आपने इन बच्चों को इनाम देकर इनकी हौसला अफजाई की। यकीनन आज की ये तकरीब एक मिसाल बनेगी। आइंदा साल जो लड़कियां 7वीं जमात में आएंगी वो भी इस वक्त का इंतजार करेंगी कि उनकी मौलिमात उन्हें भी इस तरह से ट्रेन करेंगी और इस तरह की एक तकरीब दोबारा फिर इस शहर में, इस मकाम पर और इस स्कूल के अंदर मुनक्किद होगी। मैं नेक ख्वाहिशात पेश करता हूं। फौजिया आपा की फूफी जो थाना से यहाँ खास तौर पे इस मुकाबले को देखने के लिए, सुनने के लिए आई है, उनकी जानिब से दोनों टीमों के लिए 500 रुपये का इनाम दिया जा रहा है। दोनों टीम की कैप्टन यहाँ आए और इस 500 रुपये को हासिल कर लें। रखो, बाद में चर्चा। हाजिरी, एक अच्छी तकरीब
का यहाँ इनेकाद हुआ। शुरू से हम देख रहे हैं कि आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ और स्कूल की 2 तालिबात ने जिस संजीदगी के साथ, जिस मतानत के साथ, जिस बुलंद हौसलगी के साथ निजामत का फरीजा अंजाम दिया, मैं बहुत मुतासिर हुआ। यकीन जानिए 7वीं जमात की तालिबात इतना उम्दा बयान, इतनी अच्छी पेशकश, इतना अच्छा अंदाज, दोनों तालिबात मुबारकबाद के मुस्तहिक कि उन्होंने इतनी बेबाकी के साथ, इतने हौसले के साथ और इतनी खुद एतमादी के साथ उन्होंने निजामत की। बहुत बहुत मुबारक बच्चियों आपको, आपके हौसलों को मैं सलाम करता हूं कि आपने इतनी जुर्रत का मुजाहरा किया कि इतने वालिदैन की मौजूदगी में आपने बहुत ही अच्छे अंदाज में बगैर रुके हुए आपने जिस तरह से निजामत की, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं। दुआ करता हूं कि तुम्हारा ये सिलसिला आगे भी जारी रहे। इसके बाद जिन तालिबात ने अंग्रेजी जबान के अंदर मकालमा पेश किया, माँ और बाप के हवाले से अंग्रेजी जबान में तकरीर पेश की, वाकई काबिल दाद है ये तालिबात कि इन्होंने अपने असातिज़ा के दिए हुए मवाद को इतने अच्छे अंदाज में उसको याद किया और याद करने के बाद उसे बेहतरीन तलफ्फुज़ के साथ, एक्शन के साथ अपनी बातों को अंग्रेजी जबान के अंदर पेश किया। उम्मन उर्दू प्राइमरी स्कूल के अंदर, खास तौर पर सरकारी स्कूलों के अंदर इस बात का तसव्वुर नहीं होता कि यहाँ की तालिबात अंग्रेजी जबान में इज़हार ख्याल करें। यहाँ की तालिबात ने अंग्रेजी जबान के अंदर इज़हार ख्याल किया। ये तालिबात तो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं ही, साथ ही साथ उनकी मुअल्लिमात भी मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं, जिन्होंने इतनी उम्दगी के साथ इस तकरीर को लिखा, लिखने के बाद उसे याद करवाया, उसका सही तलफ्फुज़ बतलाया, एक्शन दिखाया और आज इन तालिबात ने बहुत उम्दगी के साथ यहाँ पर अंग्रेजी जबान के अंदर अपने ख्यालात का इजहार किया। मुबारकबाद उन बच्चियों को, उनके असातिज़ा को, उनकी मुअल्लिमात को। यहाँ पर 3 तकारीर पेश की गई। पहली तकरीर जो नन्ही सी तालिबा ने पेश की, तो उस छोटी सी तालिबा को देखकर बड़ा अच्छा भी लगा और अजीब सा भी लगा कि ये 6-7 साल 8 साल की ये नन्ही सी तालिबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक इतने प्यारे अंदाज में, इतने दिलचस्प पैराई के अंदर उसने अपनी तकरीर को यहाँ पर पेश किया। उसकी पेशकश देखकर, उसके अंदाज बयान को देखकर मुझे ये यकीन हो चला है कि नांदगांव की उर्दू स्कूलों के तमाम असातिज़ा बहुत ही मेहनत के साथ, बहुत ही जाफिशानी के साथ अपनी तदरीसी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। तीनों तकरीर जो जिस अंदाज से पेश की गई, तीनों तकारीर बहुत उम्दा थी, बहुत अच्छी थी, उसकी पेशकश बड़ी दिलचस्प थी। उसके बाद आज का ये बैतबाजी की तकरीब हुई, ये तो बड़ी बेमिसाल तकरीब रही। मैं समझता हूं जब तक का शेर फहमी का ज़ौक़ मुदर्रिस के अंदर नहीं होता, तब तक का ये ज़ौक़ तलबा और तालिबात तक का नहीं पहुंचता। इनकी मुअल्लिमात, इनके असातिज़ा यकीनन शेर फहमी से दिलचस्पी रखते हैं, शेर कहने से दिलचस्पी रखते हैं, शेर सुनने से दिलचस्पी रखते हैं। इसीलिए उन्होंने ये शेर फहमी, ये शेर कहने का अंदाज, शेर को याद करने का सलीका और तरीका अपनी तालिबात को सिखाया और आज इन तालिबात ने बहुत उम्दगी के साथ आज अशार को यहाँ पर पेश किया। मैं समझता हूँ ये नांदगांव में पहली मर्तबा को जिस तरह की तकरीब हुई होगी जो इस कामयाबी के साथ इख्तिताम के मरहले तक का पहुंच रही है। जब कभी इस उर्दू स्कूल का तस्करा होगा, इन उर्दू स्कूलों की तकारीब का तस्करा होगा, तो उस तस्करे में बैतबाजी की इस तकरीब का बतौर खास तस्करा होगा कि पहली मर्तबा ये मुकाबला हुआ और इस मुकाबले में इन 10 होनहार तालिबात ने बहुत उम्दगी के साथ हर लफ्ज़ और तस्वीर के हवाले से अशार कहे। आइंदा साल जब आप इस मुकाबले का इनेकाद करें तो इसमें 2 राउंड का और अजाफा कर ले। ज़रबुल मिस्ल, मुहावरे और जो सनतें हम बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, या जो असनाफ़ सुखन हम बच्चों को पढ़ाते हैं, उस हवाले से भी कुछ अशार का एक राउंड का आप अजाफा कर लें। 6ठी की तालिबात तवज्जो दें। आइंदा साल आपके लिए मुकाबला होगा, आपकी मुअल्लिमात इस मुकाबले को और आगे बढ़ाएंगी और दिलचस्प होगा और बेहतर ये मुकाबला होगा। इस तकरीब के इनेकाद पर मैं स्कूल के फ़आल सदर मुदर्रिस जनाब शाहिद अहमद शब्बीर अहमद साहब के साथ साथ
اس اسکول میں اور اس ناندگاؤں شہر کے اردو اسکول میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے والے تمام معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کی ذاتی دلچسپی سے ایک اہم تقریب کا یہاں پر انعقاد ہوا. اردو اسکولوں کی جانب سے ایک اچھی نمائندگی ہوئی. میں مختار قریشی سر کی جانب سے، اشفاق قیصر صاحب کی جانب سے، ڈاکٹر مجاہد حسین رضوی صاحب کی جانب سے، ظفر عابد صاحب کی جانب سے، میری اپنی جانب سے ہیڈ ماسٹر، اسٹاف اور اس شہر کے تینوں اردو اسکولوں کے تمام اساتذہ، معلمین و معلمات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس مقابلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کرنے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میرے ساتھی ظفر عابد صاحب کو تشریف لائیں اور مقابلے کے حوالے سے اپنے تاثرات کا اظہار کریں. ظفر عابد صاحب آپ کے سامنے اپنے تاثرات کے لیے. ایک 10 سے 15 منٹ کی تقریب اور ہے. سرپرست حضرات، طلبہ و طالبات صبر و تحمل کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھے. ہم فاتح ٹیم کا اعلان عقیل میں کریں گے، لیکن تاثرات آپ سماعت کیجیے. السلام علیکم. میں یہاں پر جتنی بھی بچیاں بیٹھی ہیں، پہلے ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ آج کا یہ پروگرام پورے دھیان سے دیکھ اور سن رہے ہو کہ نہیں؟ سن رہے ہو؟ ٹھیک ہے. میری طرف غور سے دیکھو اور میں جیسا کرتا ہوں ویسا کرنا ہے، میں جیسا بولوں گا ویسا کرنا ہے. اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھاؤ. سب اپنا سیدھا ہاتھ اوپر اٹھاؤ. دھیرے دھیرے اس کو نیچے لاؤ، دھیرے دھیرے نیچے لاؤ اور اپنا الٹا کان پکڑ لو. کتنے لوگ الٹا کان پکڑے اور کتنے لوگ سیدھا کان پکڑے؟ اس کا مطلب آدھے لوگ سیدھا کان پکڑے ہیں، آدھے لوگ الٹا کان پکڑے ہیں. اس کا مطلب آدھے لوگ دھیان سے سن رہے ہیں اور آدھے لوگ دھیان سے دیکھ رہے ہیں. انہوں نے مجھ کو دیکھ کر، میں نے بھی سیدھا ہی کان پکڑا اور کہا تھا الٹا کان پکڑیے. تو جو مجھ کو دیکھ رہے ہیں انہوں نے سیدھا کان پکڑا، جو غور سے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں انہوں نے الٹا کان پکڑا. خیر، مقابلہ بیت بازی کے تعلق سے صبح میں جب ہم یہاں آئے تو جیسے ہی یہاں پر بچیوں نے نظامہ شروع کی، وہیں سے ہم کو احساس ہو گیا کہ ہم کسی معمولی اسکول میں نہیں آئے ہیں. اساتذہ نے اور بچوں نے بہت ہی بھرپور طریقے سے محنت کی ہے اور اس محنت کو صحیح ڈھنگ سے اپنے اندر سمونے کی کوشش کی ہے بچیوں نے. رہا بیت بازی کا مقابلہ، تو اتنا اچھا مقابلہ تھا کہ ہم نے جان بوجھ کر ٹائی کیا. جان بوجھ کر. وجہ یہ کہ ہم ان سے اور سننا چاہتے تھے، ان سے ہم اور سننا چاہتے تھے کہ ان کا بولنے کا انداز اتنا اچھا، شعر پر اور زبان پر گرفت اچھی، الفاظ تلفظ میں تھوڑی بہت کمی بیشی تھی، لیکن بولنے کا انداز، تیاری، یادداشت بہت اچھی تھی. تمام بچیوں کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور جتنی بھی بچیاں اسٹیج پر آئیں، تقاریر سے لے کر حمد و نعت اور ہم قرأت سے لے کر ابھی بیت بازی تک تمام بچیوں نے بہت ہی بہترین طریقے سے پورے پروگرام کو پیش کیا. یہاں کے جملہ اسٹاف ممبران قابل مبارکباد ہیں. انہوں نے اس سنگلاخ کہنا چاہیے کہ علاقے میں اردو کا جو پودا لگایا ہے، مجھ کو یقین ہے کہ اگلے چند سالوں میں یہ تناور درخت بنے گا اور اپنا سایہ دور تک پھیلائے گا. میں بہت متاثر ہوا بچیوں سے. جن بچیوں نے انعامات حاصل کیے ہیں ان تمام بچیوں کو مبارکباد. صرف ایک چیز پہ فیصلہ ہوا ہے آپ لوگوں کا، یہ بچیاں جو ہیں وہ دھیان دیں گے، اساتذہ بھی جو تیاری کر رہے ہیں وہ دھیان دیں گے. جو لفظ راؤنڈ تھا وہاں پر فیصلہ کیا گیا ہے. لفظ آپ لوگوں کو دیا گیا تھا موسم. لفظ آپ لوگوں کو دیا گیا تھا موسم، اور آپ نے شعر میں کیا استعمال کیا تھا؟ موسموں.
बस इस एक बात पर फैसला हुआ है। लफ्ज दिया गया था मौसम, मौसम नहीं इस्तेमाल किया, उसकी जमा इस्तेमाल की गई, वहां पर फैसला हुआ है। वरना दोनों टीमों की भरपूर, और उन्होंने ध्यान भी नहीं दिया होगा इस बात पर, और कोई देता भी नहीं इस बात पर, क्योंकि हम जज थे, हमको इस बात पर तवज्जो देना थी, हमने उस बात पर तवज्जो दी। लफ्ज राउंड का मतलब ही यही है कि जो लफ्ज दिया जाए वही लफ्ज शेर में इस्तेमाल होना चाहिए, न उसका मुतरादिफ इस्तेमाल होना चाहिए, न उसका हम्मानी इस्तेमाल होना चाहिए, न उसकी कोई और शक्ल, न उसकी कोई और शक्ल इस्तेमाल होनी चाहिए। ये खुसूसियत होती है, वरना लफ्ज देकर कोई उसका मानी नहीं रहता। उसके अलावा शबीर आसिफ साहब का ये शेर है, मालेगांव शहर से उनका ताल्लुक है, और यूं ही नहीं ये बर्फ वो समर लहलाए हैं, शेर पहला मिसरा इस तरह है, और उसमें ये आपने जो लफ्ज है यूं ही नहीं ये अदा नहीं किया था आप लोगों ने। तो ये दो चीजों पर आपका फैसला हमको दिल पर जब्र करके लेना पड़ा, वरना टीम दोनों बहुत अच्छी थी, हम चाहते थे कि दोनों को इनाम मिले, लेकिन आपके गांव वाले नहीं चाहते कि दोनों को इनाम मिले, इसलिए हमको मजबूरन इस तरह का फैसला करना पड़ा। खैर, जितनी भी बच्चियां यहाँ पर आई हैं मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, और खासतौर से उन तमाम बच्चियों के मैं नजर करना चाहूंगा। मेरी दुआ है उन तमाम बच्चियों के लिए जो बच्चियां सामने बैठी हैं, उनके लिए भी शहर में इस तालुके में जो भी बच्चियां इल्म और तालीम से जुड़ी हुई हैं, मैं तमाम के लिए मैं ख्वाहिशात का इज़हार करता हूँ। ये दुआ करता हूँ कि इतनी बड़ी तुम हो जाओ, इन तमाम बच्चियों के लिए मेरी दुआ है कि इतनी बड़ी तुम हो जाओ, आसमा हो आओ, इतनी बड़ी तुम हो जाओ, आसमा हो आओ, कहकशां हो राहदारी, जब तुम आसमा जाओ, तालीम कुंवारी कलियों का और बिछे कमल पाओ, परियां फिर सखियां हो तुम उनके साथ हो जाओ, सितारे तुम चुरा लाओ, अपने दामन में भर लाओ, फिर तुम वो हो जाओ जैसे नूरों का ज़हूर, आयशा सी बाशऊर, फातिमा सी तुम गुयूर, मुमताज का तुम सुरूर, राधा सी हो मकबूर, उस जगह जा पहुंचो, आशा ना निराशा हो, जिस जगह जभी टेको सामने ही काबा हो, वक्त तुम्हारे कदमों में सर झुकाए बैठा हो, वक्त से कहो तुम फिर न मुझको आज सजदा हो, फिर घर की याद आए तुम घर को लौटाओ, तुम घर को लौटाओ। मेरी तमाम दुआएं और मैं तमाम बच्चियों के लिए, और मुबारकबाद यहाँ के जुमला स्टाफ मेंबरान को। इसलिए बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवादे कुएं जाना, वो यहीं से लौट जाए जिन्हें जिंदगी हो प्यारी। आज एक अच्छा मुकाबला हुआ, दोनों टीमों ने बहुत जबरदस्त मुकाबला आराई थी। यकीनन मुकाबला जब होता है तो पते वो शिकस्त तो होना ही है, और तजाद के बगैर जिंदगी की रंगीनी नहीं है। मुकाबला हुआ है तो हार भी होगी और जीत भी होगी। जब तक कोई हारता नहीं तो दूसरा कोई जीतता नहीं। जीत पर खुशी होती है, लेकिन हार पर अफसोस तो होता है। लेकिन इस अफसोस के साथ अगर हम अज़्म कर लें कि आइंदा हम फतेह हासिल करेंगे, तो वो दिन दूर नहीं जब आप फतेह हासिल करेंगे कि अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपार, अज़्म मोहकम हो तो होती है बलाएं पसपार, कितने तूफान पलट देता है साहिल का राह। आइए आज की इस महफिल के हमारे दूसरे जज इस शहर के मुफ्ती साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और अपने ज़मीन ख्यालात का इज़हार करें। 2 मिनट के लिए अगर आप अपने तासुरात इस शहर की नुमाइंदगी होगी। ये बड़ी खुशी की बात है कि आज इस शहर के अहम अफराद हमारे दरमियान हैं। इस नांदगांव शहर के नगर सेवक याकूब शेख साहब, अकील टेलर साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है। यकीनन इनकी मौजूदगी इस स्कूल के लिए, इस स्कूल के असातिज़ा के लिए हौसले का सबब है। आखिर तक इनकी मौजूदगी यकीनन इन असातिज़ा को हिम्मत भी देगी, हौसला भी देगी। आपके सामने मुफ्ती साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, फस्तबिकुल खैरात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और इस महफिल में शरीक तमाम मेहमानान इकराम, आज हम यहाँ पर बैतबाजी के मुकाबले में शरीक हुए हैं, और यह हमारे अपने गांव के अंदर पहली मर्तबा हुआ है। और जब मुकाबला होता है तो उसके अंदर हार जीत होती रहती है।
اور اگر کوئی ہارا ہے تو اس کے اندر اس کو جو ہے پچھتانا نہیں چاہیے، بلکہ اپنے اندر ہمت پیدا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمت اور حوصلہ یہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور اگر یہیں پر وہ ہمت اور حوصلہ اپنا پست کر دے تو پھر آگے وہ بڑھ نہیں پاتا۔ اور مقابلے اسی لیے ہوتے ہیں کہ کوئی آگے بڑھے۔ قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے کہ نیکی کے کاموں میں جو ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور بیت بازی کا مقابلہ، شعر و شاعری کا مقابلہ کوئی معمولی نہیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اسی شعر و شاعری کے ذریعے سے انسان اپنے ضمیر کو، بلکہ اپنے کردار اور اپنے اسلام کو اور اپنے دین کو پیش کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شاعر تھے۔ اللہ کے نبی اپنے ممبر پر بٹھا کر ان سے اشعار سنا کرتے تھے۔ حضرت حسان کبھی جنگ میں شریک نہیں ہوئے، صحابہ میں آپس میں باتیں ہونے لگی کہ حسان کمزور نظر آتا ہے جو جنگ میں شریک نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ بات پہنچی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسان کی شاعری کو اس انداز سے پیش کیا کہ حسان شاعری اس طریقے سے پیش کرتے ہیں جیسے مجاہد کے تیر دشمنوں کے دلوں میں پیوست ہوتے ہیں۔ تو حسان کی شاعری تو معمولی چیز نہیں۔ تو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ان تمام طلباء کو جو مقابلے میں شریک ہوئے، اور ان کے اساتذہ کو جنہوں نے ان کے اوپر بھرپور محنت کی، جس کا نظارہ ہم سب نے یہاں پر دیکھا ہے۔ اور آگے جو ہے اس مقابلے میں کون فاتح ہوا اور کون مفتوح ہوا، اس کو جو ہے بیان کرنے کے لیے ہمارے جو تیسرے جج ہے، میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور فاتح ٹیم کا اعلان کریں۔ ابھی مفتی صاحب، اس کے بعد میں گزارش کروں گا ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب۔ آپ ناندگاؤں کے ہی قریب ایک علاقہ ہے نیائے ڈوگری، یہاں پر بحیثیت استاد اپنی خدمات کو انجام دے رہے ہیں۔ اردو کے حوالے سے آپ کی زبردست خدمات رہی ہے، درس و تدریس میں زبردست دسترس رکھتے ہیں، اور اس امید اور یقین کے ساتھ دیہات کے اندر مستقل مزاجی کے ساتھ تو گزشتہ میں سمجھتا ہوں 15-17 سالوں سے جو درس تدریس کا فریضہ اس یقین کے ساتھ انجام دے رہے ہیں کہ شبوں میں نور کی ترسیل کرنا چاہتا ہوں، شبوں میں نور کی ترسیل کرنا چاہتا ہوں، حرف کو تملیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس یقین کے ساتھ آپ 17 سالوں سے درس و تدریس کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ آج تاثرات کے ساتھ ساتھ نتائج کا اعلان بھی کریں گے ڈاکٹر محمد حسین مشاہد رضوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ عزیز بچوں، ہمارین شہر، بیرون شہر لائے مہمانان کرام، برادر ظفر عابد صاحب اور مفتی فہیم صاحب نے بہت ساری باتیں یہاں کہہ دیں۔ اب وقت بڑی تیزی کے ساتھ اس بات کا ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ اب صرف اور صرف نتائج کا اعلان کیا جائے۔ تاثرات کا وقت نہیں رہ گیا کیونکہ بچے بڑی صبر کے ساتھ یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، بچیاں۔ بس اتنا کہوں گا بیٹے، حوصلہ ہارنا نہیں چاہیے۔ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا۔ تو ذرہ بھر کبیرہ خاطر نہ ہوئیے، دل کو چھوٹا مت کیجیے۔ انشاءاللہ یہی وہ وقت ہے کہ ہار نہ تسلیم کرنا، بلکہ ہار کو بھی جیت ہی تسلیم کرنا، کہ ہار ہی جیت کی اولین زینہ ہے، ہار ہی جیت کا اولین زینہ ہے۔ ظفر عابد سر نے جو تقریر میں باتیں پیش کی اس سے ظاہر ہو گیا کہ کون فاتح ہے اور کون مفتوح ہے، لہذا اب بتانے کی بھی ضرورت نہیں رہ جاتی ہے۔ میں صرف اور صرف ایک مارک سے، ایک نمبر سے
हार और जीत का फैसला हुआ है। मफ्तू टीम करार दी गई है डॉक्टर अल्लामा इकबाल और फातेह टीम करार दी गई है मिर्जा असदुल्ला खां गालिब। मैं हारने वाली टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूं और जीतने वाली टीम को भी, और इस स्कूल के हेडमास्टर साहब, जुमला स्टाफ के वाकई में किरत निजामत, इब्तिदाई निजामत और किरत नात, उसके बाद से प्रोग्राम के आखिर तक यकीन मानिए एक सहर सा तारीख था और मैं उस सहर से अब तक निकल नहीं पाया हूं। दुआ करता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी जुमला खिदमात को शरफ़ कबूल अता फरमाए और इसका बेहतर से बेहतर सिला अता फरमाए। और शहरियान नांदगांव से भी यही इल्तिमास करूंगा, यहाँ माएँ और बहनें बड़ी तादाद में जमा हैं, कि इन लोगों का ताउन करें और अपने बच्चों और बच्चियों को उर्दू मीडियम जो हमारी मादरी जुबान है उससे तालीम दिलवाने के लिए इस सुंदर सी और बेहतर सी और अच्छी सी स्कूल में दाखिल करवाएं, ताकि अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनता, संवरता और निखरता रहे। अल्लाह बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुशाहिद रिजवी साहब। यकीनन मैं नांदगांव के तमाम ही असातिज़ा किराम के साथ साथ सरपरस्तों से और यहाँ के जो जिम्मेदारान हैं उनसे यही चाहूँगा कि एक अच्छी पेशकश, एक अच्छा आगाज उर्दू स्कूल के असातिज़ा ने किया है। आप इनके हमकदम हो जाइए, इनका ताउन कीजिए। यकीनन इसी उर्दू स्कूल से इस शहर के मुअज़्ज़ज़ शहरी तैयार होंगे। इस उर्दू स्कूल से इस शहर को एक अच्छा डॉक्टर मिल सकता है। इन्हीं उर्दू स्कूलों से एक अच्छे मुअल्लिमा मिल सकती है। इन्हीं उर्दू स्कूलों से एक अच्छा शहरी भी मिल सकता है। शर्त यह है कि इन उर्दू स्कूलों का आप ताउन जारी रखें, अपने बच्चों को उर्दू स्कूल में दाखिल करवाएं, क्योंकि उर्दू स्कूल से ही बच्चे अखलाकियात का दर्स सीखेंगे, मजहब की तालीम हासिल करेंगे और समाज और माशरे के लिए फायदेमंद साबित होंगे। आइए तकसीम इनामात के इस मरहले पर मैं गुजारिश कर रहा हूँ आज की तकरीब के सदर मोहतरम जनाब याकूब शेख साहब से कि स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब याकूब शेख साहब जोरदार तालियों के साथ इनका आप इस्तेकबाल कीजिए कि अपनी मसरूफियात से उन्होंने आज कई घंटा फारिग किया और उर्दू स्कूल की इस तकरीब के लिए यहाँ पर अव्वल से लेकर आखिर तक का यहाँ शरीक है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और इसी के साथ साथ अकील टेलर साहब, नांदगांव शहर के अकील टेलर, इनसे भी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। मालेगांव से तशरीफ लाएंगे हमारे मेहमान खुसूसी जनाब आज मुख्तार कुरैशी साहब से गुजारिश है आप भी स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब मुख्तार कुरैशी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसी तरह म्यूनसिपल उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 33 के सदर मुदर्रिस खातून हाजिन गर्ल्स हाई स्कूल के रुकन जनाब अशफाक कैसर साहब से भी गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब अकबर सर से गुजारिश है तशरीफ लाएं स्टेज पर। अकबर सर। हाजरीन, जज साहबान के तासुरात से आप वाकिफ हो चुके हैं कि कौन सी टीम जीती है, कौन सी टीम हारी है। इससे कतई नजर मैं चाहूंगा कि इन तालिबात की यहां हौसला अफजाई हो। पहले डॉक्टर अल्लामा इकबाल गुरु इन तालिबात की खिदमत में स्कूल की जानिब से जो इनाम दिया जा रहा है, मैं गुजारिश करूंगा शाइस्ता से कोई इनामात यहाँ ले आए। और हमारे आज के मेहमान खुसूसी जनाब अकबर सर से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से अक्सा पैरोज शाह इस तालिबा की खिदमत में इनाम पेश करें। अक्सा पैरोज शाह स्कूल की जानिब से इनाम, सर्टिफिकेट और हमारे याकूब भाई की जानिब से कलम दिया जा रहा है। अकबर सर के हाथों से पेन, सर्टिफिकेट और इनाम अक्सा पैरोज शाह। तंबोली जरीफा, बहुत शुक्रिया अकबर साहब का। मैं हमारे इसी तरह खाटिक आफिया इस मैं गुजारिश करूंगा हमारे अकील टेलर साहब से कि वो साइमा एजाज इस तालिबा की खिदमत में
मैं गुजारिश करूंगा आज की तकरीब के सदर याकूब, इसी तरह याकूब शेख साहब खाती, मैं मेहमान खुसूसी जनाब मुख्तार कुरैशी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मिर्जा असदुल्ला खान गाजी ग्रुप की तालिबा सुमैया खान की खिदमत में तोहफा, सर्टिफिकेट और कलम का शाहिद सर, स्कूल के हेडमास्टर। सब इधर देखो। मोहम्मद ईसा साहब और याकूब शेख साहब नगर सेवक नांदगांव नगर पालिका, इनके दस्ते मुबारक से बहुत बहुत ये बहुत ही खुशगवार लम्हा है। बहुत शुक्रिया, बहुत खूब बच्चियों, आप सबसे मैं रुखसत होता हूँ, अलविदा होता हूँ। फर्ज शुक्रिया के लिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वक्त चूंकि बहुत ज़्यादा हो चुका है तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए आज की इस बज़्म का रस्म शुक्रिया का तो मेहमानाने खुसूसी मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, खुसूसन मोहतरम मुख्तार कुरैशी साहब, चेयरमैन इरम प्राइमरी स्कूल मालेगांव, मोहतरम जनाब मोहतरम आजमी मोहम्मद यासीन मोहम्मद उमर साहब, रुकन मजलिस मुशावरत उर्दू लिसानी कमेटी बाल भारती पूना, मोहतरमा एस देवचके साहिबा, चीफ ऑफिसर नांदगांव नगर पालिका, मोहतरम याकूब शेख अब्दुल साहब, नगर सेवक नांदगांव नगर पालिका, मोहतरम जनाब डॉक्टर SI पटेल साहब, प्रिंसिपल आर्ट साइंस एंड कॉमर्स कॉलेज नांदगांव। उसी तरीके से मेरी हमपेशा साथी फौजिया मैडम, इनके वालिद साहब, मेरी हमपेशा साथी मोहतरमा जाकिरा मैडम, इनके वालिद साहब, जो मालेगांव से खुसूसन तशरीफ लाए हैं, शाकिर भाई, सलीम भाई, एजाज भाई, साजिद तंबोली साहब, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मेहमान ने खुसूसी जो मालेगांव से तशरीफ लाए हैं, उम्मीद करता हूं कि आइंदा जब हम आपको आवाज दें तो आप इसी तरह लब्बाइक कहते हुए इंशाअल्लाह हमारे प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, हाजिर रहेंगे, रहनुमाई फरमाएंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। तुम्हारे साथ ये मौसम गुलाबों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम गुलाबों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम बहुत बुलाएगा।